और इसी चीज पर हम बात भी करेंगे कि हम सैलरी जो क्रेडिट किया जाए वो किस वे में क्रेडिट किया जाए, किस सॉल्व किया जाए, हम उस चीज का डिस्कशन करेंगे। हमारे पास करीब करीब 10 सॉल्यूशन अभी तक में आ चुका है, हमारे पब्लिक के तरफ से भी, हमारे ऑडियंस के तरफ से भी, और जो हमारा खुद का है हमारे तरफ से भी बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। हम उस सॉल्यूशन पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आपका पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी जो नहीं मिल रही है उसके उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन तब तक हम आते हैं सुनील कुशवाहा सर के पास। सर, सुनील सर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप इस प्रॉब्लम्स को 1 मिनट, एक वर्ड में और एक लाइन में या एक पैराग्राफ में डिफाइन करिए। Good evening, sir. Am I clearly audible? यस, वेरी मच सर। Yeah, thank you, sir. First of all, I feel fortunate that I got the opportunity of being the part of this webinar. I'm Sunil Kushwaha. I'm working as an English teacher. And sir, in this pandemic, the biggest challenge which I'm facing as a teacher, I'm not talking only about my concern. It is the concern of almost all the teachers who are in the same profession. That this is the depressing moment not only for the teachers but for the students. The students who are switching, who are in the age of adolescence, they are not able to cope up. They have a habit of meeting with their friends. They have a habit of going to school. This online option of taking the classes is not being suitable for the students also. So this is the depressing moment for the teachers and for the students also. And as we have seen in the national television, that many individuals are taking the step of suicidal attempts. So this is a challenge for all the teachers, that how we have to counsel our students, how we have to take the proper control of their mind, their habits, and they are in the age of adolescence. So they should not be wrongly inspired by what they are seeing in the national media, because media is not concerned about what they are showing in the television. So we teachers have to take the responsibility of proper mental growth of the students. So this is the depressing moment for the teachers and for the students, and we have to tackle this transition, because we are not having the transition of virtualization in the positive way. This is extremely positive that we are slightly having the movement from physical classrooms to virtual classrooms. But we have to tackle this in a very suitable way, in a very sweet way, that all the students, the parents, and the teachers, they all will start taking it positively and very easily, because every profession is now slightly getting out of the effect of pandemic. May it be shopkeeper, may it be vegetable vendor, may it be builders. Everyone is slightly coming out of the effect of this pandemic. But schools are the only areas which is greatly affected, and it is being extremely difficult for the government also. We cannot blame government, because government is taking the positive step. We cannot open school. It will be extremely dangerous for all the students and the teachers also. So this virtual transition, the transition from physical classroom to virtual classroom, has to be taken very positively. True, sir. So that Yeah, sir, true. I mean that okay, both the situation that okay, the current situation is that okay, एक कहावत है हिंदी में कि आगे गड्ढा और पीछे कुआं, राइट? पीछे कुआं और आगे गड्ढे वाली yes, sir. ना, कि हम स्कूल खोले तो भी प्रॉब्लम, ना खोले तो भी प्रॉब्लम। अगर खोलते तो भी प्रॉब्लम, बेसिकली लाइफ से हम खेल रहे हैं, बच्चे की लाइफ से खेल रहे हैं। अगर ना खोले तो टीचर्स को जो है वो सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स को तो सैलरी मिल रही है, बट प्राइवेट टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। तो and sir, one more thing is there, that we have invested number of years into the mental and physical growth of our students, but it's a complete blockage. We are not able to meet them. They are not able to come to school. So we are unaware of their growth, their physical growth, their mental growth, and their social growth. So it has given a complete blockage. It's like any artery, any vein which is transferring blood to heart, which is transferring oxygen to heart. So it's completely blocked. Similarly, the contact between the teachers and students is completely blocked. Yes, see, okay, that's a agree. I mean that okay, and then okay, in this today's discussion we are not going into that mode, ठीक है? But अगर if I'll ask you the one question, one simple question, that can you just give Yes, me sir. the one points or that okay one option where the school can give a salary to the student, I mean to the teacher?
हूँ, मैं एक अभी आता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे पास अभी डेटा है, मैं उस डेटा की बात करता हूँ। जस्ट गिव मी द 1 सेकेंड। जो एक सुझाव हमने गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया था, हमने अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया था उन प्राइवेट वर्कर्स के लिए जिनके लिए कि सरकार की तरफ से उतनी कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने एक प्रोविजन क्या दिया था कि स्पेशली लेट्स अज्यूम इधर दैट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर, जो कि अगर वो भी अगर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को या फिर स्कूल, तो हमने एक सॉल्यूशन, हमने कपल ऑफ सॉल्यूशन दिया था। उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि हम उसमें हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने बोला था कि स्कूल shall continue paying that at least the 30 to 40% of the salary, because हमें स्कूल को भी देखना होगा। अगर आज मेरा स्कूल है तो मुझे भी देखना होगा कि अगर मुझे पेमेंट नहीं आ रहा है, मुझे अगर स्कूल से स्टूडेंट्स का फी नहीं आ रहा है, तो हाउ आई कैन पे इट आउट। दूसरी बात है कि मुझे अपने पॉकेट से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मेरा धर्म कर्म की बात, वो दूसरी बात हो जाती है। बट हमें एटलीस्ट का सिचुएशन में मैंने सजेशन दिया था 30 to 40% जो है वो स्कूल पे करे, 20% जो कि एफिलिएटेड स्कूल्स है, रजिस्टर्ड स्कूल्स है, एफिलिएटेड स्कूल्स है, वो 20% स्टेट गवर्नमेंट पे करे, 20% स्टेट गवर्नमेंट पे करे, एंड देन 20% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करे। क्योंकि एज ए टीचर जब हम एक स्टूडेंट को बिल्ड करता हूं तो मैं सिर्फ स्टेट के लिए नहीं करता हूं, मैं एक नेशन के लिए करता हूं, राइट? Definitely, sir. One more thing I would like to add. We teachers are given the responsibility of nation builders. Exactly. I have attended many seminars wherever I have been. In every renowned places, it is being told that teachers are nation builders. True. So my question is, why the nation is not taking stand for the teachers? So that's everyone has been talking about migrant laborers, everyone has been talking about number of businesses which are being affected, but none authority in the entire nation is concerned about the financial state of teachers. Agree. This political game. That's why, yes, sir. That's why, sir, इस डिस्कशन में हमने सिर्फ उसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व और द गवर्नमेंट कैन रिजॉल्व दिस इश्यूज। It's not all about that a private school teacher. It's basically a lot of the private organization, they are not able to, or they are not capable enough to pay. Even that, I am saying that not capable enough to pay because they are doing the regional margin. They are doing the business on the regional margin, right? तो हमने जो सजेशन गवर्नमेंट को दिया था कि 30 to 40% पे करे, 20% स्टेट गवर्नमेंट एंड 20% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करे, 80%। तो मेरे सैलरी का जो 80% अगर आता है तो ठीक है, 20% एज ए पब्लिक ऑफ इंडिया, राइट, एज ए नेशन, ठीक है, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ और मैं अपना 20% छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। बट एटलीस्ट जो है मुझे 30-40% स्कूल दे, सो दैट कि मेरा मेरा जो परिवार का जो कंटिन्यूशन है, ठीक है, उसको हम लोग बीसीपी प्लान बोलते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान फॉर माय फैमिली इटसेल्फ, राइट? तो वो चलता रहे। और जो 20% जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स के लिए बोला गया था, तो उस चीज पर ही। तो अभी एक आते हैं सरजीत सर के पास। सरजीत सर, जो मेरा जो ये मेरा प्रपोजल है कि 40-20-20 का रेशियो और 20% टीचर भी बेयर करे कि हाँ ठीक है, चलो मैं 20% का लॉस ले सकता हूं, आप क्या कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है कुछ हद तक कारगर हो सकता है? क्या हम इस वॉइस को, आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं? इस मैटर में एक चीज हम शेयर कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनाई जा रहे हैं हमको? यस सर, यस सर। हेलो, हाँ। पहला पॉइंट है जो वी आर द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी, जो खुशवा साहब बोल रहे थे, एंड वी आर द आर्किटेक्ट फॉर द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, एंड टुडेज स्टूडेंट्स विल बी द टुमारोज सिटीजन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हमने बोला, जो भी हम है, हमारा अस्तित्व और हमारा वाइटलिटी को आई एम ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसडक्टिंग अमंग माई स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 हम एक एक पॉइंट करके सॉर्ट आउट करेंगे, बाद में हम इकोनॉमिकल में जाएंगे। पहला है जो बर्नआउट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, हमारा जो, अगर आज हम होस्ट है तो हम एग्जस्टिंग हो रहे हैं
न्यू चैलेंजेस के साथ में, नंबर 1। तो व्हाट विल बी माय डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द चैलेंज? इज इट ओनली द वर्चुअल क्लास? ये हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पैनल में, जे इज इट ओनली द वर्चुअल क्लास इज माय स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द चैलेंज? नंबर 3, स्कूल डे नेवर एंड्स। ठीक है, आज हमारा स्कूल, इट इज नॉट ओनली द लैंड, इट इज ऑन द स्काई। स्काई में चला गया। हमने एप्स का सहायता में अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट माई टीचर्स आर डूइंग द वर्क एंड दैट टू बी टाइमलेस वर्क। It is a continuous work. Normal routine of all the teachers has disturbed. It feels like we have no purpose right now except the online classes. Then how we will keep our action plan consistent? And who will take care about our time box management? अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमारा फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ द टीचर्स। कुछ पहले खुशवा सर बोले बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड कर रहा है, तो इसको कौन बचाएगा? नहीं सर, तो इसमें हम बोल रहे हैं दैट उसकी नौबत नहीं आएगी, और हम कोशिश तो करेंगे कि उसकी नौबत हम अपने लेवल पर कि सुसाइड लेवल तक तो हम आने नहीं देंगे। जहां तक की कोशिश होगा हम कोशिश करेंगे, हम यूथ जो है कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने ये जो प्रोग्राम है यूथ के लिए, यूथ को मैं मूवमेंट करूंगा कि वो कोशिश करे कि ऐसा सिचुएशन ना आए। जा प्लीज सर। ओके, अभी जो है टेक केयर अबाउट आवरसेल्फ, हम लोगों को अपने आप को केयर करना होगा। जो हमारा प्लान टाइम है, जो हमारा क्लास लिया जा रहा है, हमारा पूरा इंडिया को, पूरा प्राइवेट स्कूल का टीचर्स को ये बोलना है दैट प्लीज यू विल मेक योर प्लान। एंड ये जो मेंटर्स है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको उनका ब्रेक्स के लिए, मील्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, स्लीप के लिए एक रूटीन देना पड़ेगा सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट्स को। सीटिंग रिमाइंडर्स, अलार्म्स अपना फोन में लगाइए, और आपको इट विल हेल्प टू कीप यू ऑन ट्रैक। Stability and consistency for students and families is very important, and it is very important that we have to give emphasis for the balancing of workflow. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स का टेनिस एल्बो प्रॉब्लम दिखा जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में, सब जगह में शोल्डर फ्यूजन हो रहा है। ये चीज आप सोचिए, अगर आप स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लास देंगे टू रिड्यूस आई स्ट्रेन्स बाय ऑप्थेल्मोलॉजी जो दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। एवरी 20 मिनट्स में लुक एट समथिंग 20 फ्रॉम एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, ये होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, ये उनको सिखाना चाहिए। हेल्प बूस्ट मूड, इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी, रिलीव योर स्ट्रेस, फिजिकल एक्सरसाइज। हमारा बच्चे घर में है, एक हम चीज बोल रहे हैं जो हर पेरेंट्स को हमको इंडिकेट करना चाहिए, थिंग्स दैट आर नॉट ओके। सर जी, माय डियर, आप नहीं समझ रहे हैं, हमारा जो कंडीशन है आज, हमारा सेम कंडीशन हमारा स्टूडेंट्स का है। उनको भी फिजिकली वो क्या करना पड़ेगा। हम लोगों का जो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन, इससे बच्चा हमारा एलिमिनेट हो रहा है, हमारे टीचर से एलिमिनेट हो रहा है। सर जी, हम उनको जोड़ना पड़ेगा। सर जी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि जो सॉल्यूशन, अभी हम फाइनेंशियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो सॉल्यूशन हमने अभी जो बताया कि 40% स्कूल दे, 30% जो है, 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट दे, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट दे, ठीक है। ऑफकोर्स ये देना चाहिए, ऑफकोर्स ये देना चाहिए, क्योंकि हमारा टीचर्स टीडीएस पे करते हैं, हम लोग उन टैक्स पे ही सर्वेंट हैं, हम लोग उन टैक्स देते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अभी आप पर हम लोग उन टैक्स देते हैं। सर आते हैं, अभी श्रीनिवास सर ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। श्रीनिवास सर, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। सर जी, आपको आवाज आ रही है? श्रीनिवास सर, आपको नहीं आ रही सर अच्छे से? हाँ, बीच में आ रही है फिर कट जा रही है सर। ठीक है, नहीं, आपका आवाज क्लियर आ रहा है सर, आप बोलिए। बोलिए सर।
ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस हाँ, ये बोलिए किया सर। एक ऑप्शन जो हमने अपने तरफ से सजेस्ट किया है कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन में 40% सैलरी जो है स्कूल दे, 40% सैलरी स्कूल दे और 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे। आपको क्या लगता है कि ये वर्कआउट होना चाहिए या हो पाएगा? ये वर्कआउट होना चाहिए सर एकदम। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके जो एम्प्लॉय है उनको तो पूरा पैसा मिल रहा है। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वाले को खाली छोड़ दिया गया है, सिर्फ नोटिस दे दिया गया है कि क्लासेस मत चलाइए और ऑनलाइन क्लासेस मत लीजिए और फीस मत मांगिए। तो फीस नहीं मांगेंगे, क्लासेस नहीं चलाएंगे तो ये तो स्कूल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ट्रू, एग्जैक्टली वही सिचुएशन, अभी वही सिचुएशन था जो कि अभी तेलिना मैडम ने बताया कि इस हमारे रिगार्ड्स में हमने ये बोला है जो हमारा जो टीचर्स है हम लोग टैक्स पे ही सर्वेंट है गवर्नमेंट जी। का, हम टैक्स देते जी। हैं। आज हमारे लिए पेंडेमिक एक कर्ज बन गया है, हम लोग को रोड पर उतर आए Agree, क्योंकि sir। एक हम- साइड में बोला जा रहा है, एक साइड में बोला जा रहा है जो पेरेंट्स फी नहीं देंगे। क्यों फी नहीं देंगे? क्यों फी नहीं देंगे? इसका तर्क क्या है? सर जब हम लोगों क्लासेस डे एंड सर, नाइट क्लासेस उनका नहीं, करिकुलम, सर क्लासेस नहीं हेलो, होगा तो क्लासेस नहीं होगा तो गार्जियन फीस क्यों दे? सर एक चीज सुनिए, जब ऑनलाइन हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, उनका करिकुलम कंप्लीट कर रहे हैं, उनका हमारे लोगों प्रोसेस कर रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, पीटीएम तक किया जा रहा है, तो कौन सा चीज नहीं हो रहा है? नहीं, उस खाली सिचुएशन में फिजिकली फेस टू फेस, हेलो, agree, sir। खाली हम लोगों ने भी प्राइवेट स्कूल फेस टू फेस जो कांटेक्ट हो रहा था, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये वेबिनार में हो रहा है, ये जूम के द्वारा हो रहा है, चाहे ये हमारा गूगल मीट्स में हो रहा है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो रहा है भाई, बट हम लोग टेकिंग कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। वर्चुअल क्लासेस इज गोइंग ऑन। यस सर, इंडिया का 9 आते सर वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। सर इस चीज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं शशिकला मैडम से। शशिकला मैडम का देखते हैं कि क्या वॉइस हाँ। है। शशिकला मैडम, अगर हाँ, हम yes, sir। यस सर, अगर हम क्लासेस ले रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन हो और हम हर एक काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को तो पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन एक वही है कि अगर पेरेंट्स जिस नौकरी में पैसे में है, अगर पेरेंट्स को सैलरी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स का अनाज मंडी तक नहीं पहुंच रहा है, वो किसान है, राइट, जो जी। पेरेंट्स है वो डेली वर्कर्स हैं, उनको नहीं पैसा मिल रहा है तो वो पैसा कहां से देगा? ठीक है, तो ये बेसिकली परफेक्ट सर, ये कंट्राडिक्टरी है। नहीं कॉन्टेक्ट कर रहा है सर, राइट, बट सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ। Okay, Kalyan, just a minute. I just sorry to interrupt. As sir has put that questions to me, just let me to clarify one thing. Sir, आप पहले जो बोले कि 30% to 40% एम्प्लॉयर को भी देना होगा, मेरे को बताइए सर, एम्प्लॉयर भी इंस्टीट्यूशन चलाता है, अगर ट्यूशन फी एम्प्लॉयर के पास नहीं आएगा तो एम्प्लॉयर कहाँ से देगा 30 to 40? जहां तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ठीक है, उनके पास रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू से दे कैन एबल टू फाइनेंस, ओके। लेकिन जो एम्प्लॉयर है हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन से, जहां से आप बोले कि 30 to 40% वो 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, 3 महीना देगा, लेकिन उसके बाद क्या सर? उसके बाद अगर यही सिचुएशन रहा जैसे कि हम मार्च से अभी तक फेस करते आ रहे हैं, यही सिचुएशन रहा और ट्यूशन फी नहीं देने के लिए जो भी पेरेंट्स वो लोग हंगामा कर रहे कि हम लोग नहीं देंगे, तो वो इंस्टीट्यूशन में 30 to 40% कहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा? बात ये आती है सर, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं आपको कि कुछ पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कम से कम 60% तो ऐसे हैं जो बियर कर सकते हैं। और उनके ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो वो लोग उस क्लास के उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं सर, फिर भी वो लोग झूठे का बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे का ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ दिस, दे आर शोइंग द इश्यूज, इनवैलिड इश्यूज, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो एम्प्लॉयर कहां से लाएगा? एम्प्लॉयर कहां से लाएगा वो 30 to 40%? तो बात ये है ना सर, एक बात है कि स्कूल को अभी ये 30 to 40% की जो रेवेन्यू जनरेट करना है जिससे स्कूल इस चीज को बियर कर पाए, उसके लिए फर्स्ट तो
हो सकता है कहीं कहीं हमारे टीचर्स की तरफ से भी लैकुना है कि टीचर्स ना आजकल डिसअपॉइंटेड हो गए हैं क्योंकि टीचर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से। तो जितना एफर्ट डिजिटल क्लास में टीचर्स को करना चाहिए वो टीचर्स डिजिटल क्लास में नहीं कर रहा है, जो कन्विंसिंग नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को। जब तक टीचर्स से स्टूडेंट्स को कन्विंसिंग नहीं होगा, जो भी टीचर्स हम डिजिटली जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो पेरेंट्स को भी वो कन्विंस कर रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है डिजिटल क्लास में, तो पेरेंट्स इसलिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोली क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहिए। अब भी टीचर्स अपने आप को थोड़ी सी हाईटेक करके थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटेंसी बढ़ा के कैसे स्टूडेंट्स के पास कन्विंसिंग हो उसके टेक्स्ट, जिससे स्टूडेंट्स को एनकरेज कर पाए और ये बता पाए कि हम कितना, वो भी पढ़ाने के साथ साथ ये भी दिखा पाए कि हाउ मच पेन वी आर इनकरिंग फॉर यू, ठीक है, एंड वी आर पासिंग द नॉलेज। एटलीस्ट वो अपना वो जो 60% पेरेंट्स है जो पे कर सकते हैं ट्यूशन फी, उनको कन्विंस कर पाए कि वो 30 to 40% एज ए ट्यूशन फी दे शुड गिव टू द एम्प्लॉयर, so that the employer can contribute there to the employment। बाकी जहां तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है सर, अगर हम लोग की आवाज थ्रू आपका पहुंच सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वी विल बी, मतलब बहुत हाई मोबिलाइज टू यू फॉर दैट, ये बात है। लेकिन वही बात है सर, अगर ये फिजिबल हो गए तो तब तो ठीक है, नहीं है तो हमको लग रहा है ये जितने भी सेक्टर पैंडेमिक में मतलब इफेक्टेड हो रहे एडवर्सली, सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर ही इफेक्ट करेगा। नहीं मैडम, मैं इस बात Thank you, से सहमत नहीं हूँ कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो अफेक्टेड। आई मीन दैट फॉर्चुनेट जो है एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी है। अगेन एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और मैं अब ट्रस्ट मी, मैं अभी बता सकता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 10 में से एक एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम पर बन रही है, और आज की डेट में कंपनी एजुकेशन सिस्टम पर सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। जहां सर सॉरी टू से यू, आपका बात सुनाई नहीं जा रहा है, आपका बात काट रहे हैं। हेलो राकेश सर, आपका बात काट रहा है। एक सेकंड सर, नॉइस क्लियर, नॉइस क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। राकेश सर, आपका बात काट रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तब तक आप डिस्कशन चालू रखिए, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। जी सर। आप अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है सर? बोलिए। ठीक है, हाँ पूरा क्लियर है जी। तो मैं किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहा था कि ऐसा सिचुएशन जो अभी जो शशिकला मैडम ने बताई ना कि एजुकेशन सेक्टर अफेक्टेड है, वो 100% ट्रू नहीं है। फिजिकल एजुकेशन सिस्टम अफेक्टेड है, बट अगर हम आज के डेट में हाई टेक की अगर बात करें तो हमारा जो हाईटेक सिस्टम है वहां पर हम काट रहा है, फिर से काट रहा है, फिर से काट रहा है, सुनाई नहीं जा रहा है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है सर। जस्ट वन सेकंड। अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर, कुछ टाइम में आपके आ रही है, लेकिन कंटिन्यूअसली व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच दैट इज नॉट क्लियर। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर। आई होप दैट नाउ इट्स क्लियर, राइट? यस सर, नाउ इट इज ऑडिबल। या तो मैं किस चीज़ का डिस्कस कर रहा था कि जो शशिकला मैडम ने बोला कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्पैक्टेड है, ट्रू इम्पैक्टेड है, लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ हमने अभी डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे पास बहुत बड़ा सेगमेंट का जो मार्केट है ना, एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया है। बशर्ते कि हम उस चीज़ को पकड़ पाए कि ये एजुकेशन सिस्टम पर हम कैसे अटैक कर सकते हैं, इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है जो कि गार्टनर का डेटा है, मैं आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। जस्ट एक सेकेंड। आज के डेट में 10 में से एक जो है एजुकेशन सिस्टम पर बन रहा है। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो 10 में से एक सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम पर बन रहा है। दूसरा, जितने भी हाई लेवल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या जो रोबोटिक्स है, ठीक है, उन सभी में 10 में से 2.5 एप्लीकेशन वो एजुकेशन सिस्टम पर बन रहा है।
एजुकेशन सिस्टम जो है वो हाईली टेकी हो चुका है, जहां पर कि आप AR VR के रूप में जो है आप उस चीज को आप देख सकते हैं, आप क्लास लेवल का फील ले सकते हैं घर बैठे बैठे। राइट। तो लेकिन अभी सवाल वो नहीं है, अभी सवाल सिर्फ एक ही यही है कि क्या इसके अलावा जो हमने अभी 40-30 का रेशियो दिया, आई एग्री कि हो सकता है कि ये वर्कआउट ना हो। हम अभी सिर्फ इस चीज को एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्कआउट ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा और हमारे पास क्या, अगर क्या हमारे पास कुछ और सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, मेरे पास एक और सॉल्यूशन है जहां पर टीचर्स में गेट हेल्प। तो जो क्वालिफाइड टीचर है, अगेन शशिकला मैडम से मैं इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि कुछ टीचर जो है प्रॉपर इंटेंशन और जो है आई मीन दैट कंसंट्रेट होकर एजुकेशन सिस्टम से अभी ना जुड़ा हो, उनके पास सैलरी अभी नहीं आ रही है, ठीक है, एग्री। बट द सेकेंड हाफ मैं उन टीचर्स की बात करता हूँ कि जो टीचर कैपेबल इनफ है, वो चाहे तो अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, वो चाहे तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर्स हैं लाइक दैट के बैजू, लाइक द खान अकेडमीज, देयर इज प्लेंटी ऑफ 100 ऑफ, राइट। आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप अपना मटेरियल्स वहां दे सकते हैं, जहां पर कि उससे आपको क्या होगा, इन कैश होगा, आप उसको पैसा उठाएंगे। दूसरा, आप वो मटेरियल्स को हम प्रमोट करेंगे, हम एज ए यंग यूथ की बात करते हैं, हम आपका मटेरियल्स को प्रमोट करते हैं, हम आपको प्रमोट करते हैं। हम यहाँ पर सॉल्यूशनिंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्यूशनिंग की बात कर रहे हैं। आपकी क्या सॉल्यूशन है? यस सर। हेलो, श्रीनिवास इन दिस मैटर में एक बार श्रीनिवास सर से बात करते हैं। श्रीनिवास सर बहुत देर से आए हुए हैं। यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी सर, हाँ बोलिए सर, पूछिए। सर आपका क्या सजेशन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सॉल्यूशन आप दें तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे? ये ऑनलाइन की क्लासेस सर, ये तो चलते रहेगा, तो और चलने से ऐसा नहीं है, इसका पैरामीटर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पूरे बच्चे को लास्ट बच्चे तक पूरा समझ आए, और बच्चे जब पूरे हाँ बोलेंगे तब वो टीचर्स को पेमेंट करेंगे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि आप ये देखेंगे कि पैरामीटर जो बनाना है बच्चों का, अपन कुछ बच्चों को लेके बनाएंगे, जो टीचर कन्विंस कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हर टीचर का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक दो टीचर ऐसा हो सकता है कि पूरा ढंग से ना करा पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे टीचर उसके लिए सफर करेंगे। एग्री और उसके लिए वो पेरेंट्स पेमेंट ना करे। और नहीं, ये तो बात ही नहीं, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन में ही अगर हमारा टीचर कोई एक दो नहीं पढ़ा पा रहे, ऑफलाइन में भी एक दो टीचर जो है वो उतने स्मार्ट इनफ नहीं है जो कि हम स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर कन्वे कर सके। नहीं है, राइट, वो नहीं। तो आखिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? पेरेंट्स का ये कहना गलत होगा। नहीं सर, पेरेंट्स का ये कहना पेरेंट्स को गलत क्लासेस हम देंगे और उनको फीस नहीं सर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पेरेंट्स के पास भी पैसा आए तभी तो आवाज पेरेंट्स भी clear पैसा दे। पेरेंट्स के पास भी पैसा आए तभी तो पैसा दे पेरेंट्स। इसमें हाँ सर, इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आज हम जो चर्चा ये होगा सर, प्राइवेट स्कूल के जो है, गवर्नमेंट स्कूल की बातें नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स उतना तो कैपेसिटी है सर उनके पास, वो कैपेबल है, दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जो ज्वाइन किए हैं जो फीस ना दे पाए, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे सर। नहीं सर, आप उस लेवल की एजुकेशन स्कूल से जुड़े हुए हैं आज जो अवसर का फायदा उठाकर अगर ये बोलना चाह नहीं सर, पूरे बच्चे जो है सर, आप उस प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर की फीस जो है लाखों में है। मैं उस प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ जहां पर की 500-800 मंथली का फीस है। आवाज नहीं है। हाँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो वहां पर जो पेरेंट्स वहां के जो पेरेंट्स होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। आप अपर मिडिल लेवल क्लास के स्कूल्स की बात कर रहे हैं और उस पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, दे कैन पे, बट हम उस एक तराजू में सभी को नहीं पैमाने पर तोल सकते। वो टीचर उन टीचर का क्या है? तलीना मैडम बहुत देर से आप जो है साइलेंट है। आप क्या कर सकते हैं कि आप आपसे अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो तलीना मैडम आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं सिर्फ 2 सॉल्यूशन आपसे पूछूंगा कि आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉरी सर, एक्चुअली राइट नाउ हम लोग की कंट्री में मोर देन 80% स्कूल जो है जो मिडिल इनकम लेवल एंड अपर इनकम लेवल में,
तो इसमें ऐसा कोई जो डेली वेजेस वर्कर है, इस फैमिली से कोई बच्चा पढ़ते नहीं है. इन आवर स्कूल few students are there, those who are from government, and their expenditure totally borne by the government. But when the parents, they are working in MNC, either as Wipro, TCS, or they are government employee, they are getting their payment. All the IT companies, they are paying their employees to do the work from home. Yes, they are So paying. why not us? We are also doing the work from home. यहाँ पे भी हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं, हम लोग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिंसिपल सर के पास जमा होता है. यहाँ पे भी 40 मिनट्स क्लास हो रहा है, बच्चे का प्रेयर तक भी हो रहा है. We are conducting the prayer also. We are taking the PTM also. Then why not us? Why teacher they only face the problem? नहीं मैडम, एग्री कि टीचर्स को किसी को फेस प्रॉब्लम नहीं Right now इंडिया में हर एक बिजनेस खुल गया सर. Whether it is restaurant business, whether it is spa, whether it is gym, all the businesses they are open. अभी बस ट्रेन नहीं चल रहा है और बाकी सब कुछ हो रहा है. But teachers, private school teachers, they are not getting their payment. इसमें हमको हेलो Yes, sir. Yes, sir. राकेश Yes, sir. जी, इसमें एक बात हमको बोलना है. हमको इसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आ रहा है. इसको आप एंगल में देखिए, आपका टेलीस्कोप को आप उस जगह में सेट कीजिए. जैसा कि पहले स्कूल का क्लासेस को, स्कूल में जो क्लास हो रहा था उसको अपप्रचार करके कोचिंग सेंटर का डेवलप हुआ. अभी हमको डर है जो हमारा ये जो वर्चुअल क्लासेस के नाम में बाहर का कंपनी आज ऑस्ट्रेलिया से चाहे डिफरेंट कंट्री से आके हमारा बच्चे को वर्चुअल क्लासेस देना शुरू करेगा. ये एक न्यू अपसूट डेवलप होने जा रहा है. इसको एक एजुकेशनिस्ट पैनल को देखना चाहिए. सर ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. मैं हाँ, 2018 तो की बात कर रहा हूं. इन लोगों कभी नहीं चाहेगा जो फिजिकली अगेन हमारा जो आई टू आई कांटेक्ट, जो इमोशनल बैलेंसिंग करके पढ़ाना, इंडिया का जो अस्तित्व था, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, इंडिया का जो वर्चुअलिटी था, इंडिया का जो सहिष्णुता था, इंडिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंडोलॉजी था, उसको हैम्पर करके एक नया ट्रेंड शुरू होगा. सर जी अभी ये हमको दिखाया जा रहा है. नहीं, वो तो अभी हम एजुकेशन सिस्टम पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमारा क्या है नहीं है. नहीं हम अरे भाई इसीलिए तो बोल रहे हैं ना. इसीलिए हम बोल रहे हैं जो हमारा पेरेंट्स को जो नेगेटिव डायरेक्शन दिया जा रहा है, इसका एक मीडिया भी काम कर रहा है, एक सोशल मीडिया इसमें काम कर रहा है. जो आपको जैसा हमारा बच्चा भाई, हम लोग कौन फादर भी है, हम लोग टीचर्स भी है, हम लोग पेरेंट्स भी है. ऐसा जो हमारा 80% टीचर्स है उसमें मोर देन 20% आर पेरेंट्स. जब स्कूल का सब कुछ काम हमारा घर से हो रहा है और बच्चे सेफ्टी में है, हेल्थ का व्यू से कोरोना में एक्सपोजर नहीं होगा, सेफ्टी पॉइंट में है, तो हमको फी देने में क्या तकलीफ है? नहीं सर, हम क्यों ट्यूशन फी नहीं दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं सर, वही तो बात कर रहे हैं कि एकदम हम ट्यूशन फी दे सकते हैं. ठीक है, अगर हम डेटा की बात करें तो तलीना मैडम आपके पास तो डेटा ज़्यादा होगा मेरे से. 85% जो हमारे पास जो टैक्स पेयर्स हैं वो दे आर ओनली दैट 3 करोड़ प्लस. राइट. अब अगर जो टैक्स पेयर के जो थोड़ा सा जो बॉटम उसके जो जस्ट नीचे वाले हैं, मान लेते हैं कि 3 करोड़ वो भी हैं, तो नाउ यू हैव अ टोटल 6 करोड़ आउट ऑफ दैट 130 करोड़. So now still that you have the 120 plus crore people, they have the dependency on either they are that daily wager or they are farmer. मैं अभी विलेज में हूँ. मैं अभी आपको यहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे विलेज में 100, 200 और 1000 क्विंटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं हजारों लाख क्विंटल की बात कर रहा हूँ कि मक्का जो स्टॉक है. क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सेल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस भी कम है. जो पिछले साल जो है 1800 थी वो अभी करीब 1050 रुपीज़ है. क्यों किसान सेल करेगा? अब भी क्या हो रहा है कि अब उस किसान को मैं बोलूँ कि भाई तुम फीस दो, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है. वो फीस देना भी चाहिए और समझो जिसके पास नहीं है, जिसके पास
आई मीन दैट कि वे नहीं है कि वो फीस पे कर सके, ऑब्वियसली है उसको थोड़ा सा रिबेट मिलना भी चाहिए। लेकिन ऑल दो दिस सिचुएशन, मैं सिर्फ अभी सॉल्यूशनिंग की बात कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हमारे और solution क्या है, अगर आज के डेट में पेरेंट्स जो है पे आउट नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास और दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, क्यों नहीं हम इसको opportunity में कन्वर्ट करें। As a teacher, why should not I create this as an opportunity where I can teach the student online and I'll get the payment of that, not depend. We don't have dependency on the school. इसमें एक चीज हमारा राज्य का तरफ बोलना है, स्टेट गवर्नमेंट को प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स का था वो आज प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया है। ये तो राइट है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टूडेंट था वो अभी आके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट्स जो आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स है उनका फुल बजट पेमेंट जा रहा है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी देखना होना चाहिए, जो टीचर्स कैपेबल है, जो टीचर्स मैक्सिमम बच्चे को कैप्चर करके पढ़ा रहे हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं पूरा देश को, उन टीचर्स के लिए उनका कुछ परसेंटेज नहीं देना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। आते श्रीनिवास सर से पूछते हैं कि उनका और क्या विचार है इस पर। जी सर योर पॉइंट इसमें सर मेरा ये हेलो यस सर, आपका जो कहना है, आप जो बोल रहे हैं आधे कुछ लोग दे नहीं सकते फीस, यहाँ पर सर मेरा ये एक बात ये रखना चाह रहा हूँ, हम अपने सिर्फ इनकम का नहीं सोच रहे हैं, स्कूल रन कराने के बारे में बात हो रही है। अगर टीचर सिर्फ अपने इनकम के बारे में सोचेंगे ना तो वो स्कूल से हट के आप जो अदर ऑप्शंस बता रहे हैं ना, वो तो जो कैपेबल है वो टीचर वहां कमा ही सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस दूसरी जगह देंगे तो उनको तो इनकम होगा, बात टीचर का इनकम का नहीं है सर। ये टोटल स्कूल रन कराने के बारे में अपन आज चर्चा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का क्या चीज है, सिर्फ अगर मेरा इनकम का है, मेरे को मैं क्विट करूंगा, दूसरे जगह मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। अभी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी चल रही है, आपको मैं जानकारी में बता दूं। लोग पे नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चे उसका फीस पे कर रहे हैं। आप इसकी जानकारी हो? यस सर, मैं खुद लेता हूँ। हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे में तो गलत है ना। नहीं 100% की अगर एज ए तो हम अपना इनकम में स्कूल रन होना चाहिए। नहीं एग्जैक्टली, तो फिर स्कूल रन होना चाहिए तो स्कूल एज ए पेरेंट्स अगर मैं कैपेबल इनफ हूं तो मुझे पे करना ही चाहिए। इवन कि अगर मेरा एक महीना सर वो लोग कैपेबल है, लेकिन वो लोग इस मौके का फायदा उठा रहा है। दे आर सेइंग दैट लॉकडाउन है कैसे दूं, बट आप थोड़ा सा देखिए, हर एक बिजनेस खुल गया, सब कुछ खुल गया, जब बस ट्रेन नहीं चल रहे हो, वो भी रेल एम्प्लॉय लोग घर में बैठ के वो लोग को पैसा मिल रहा है। जिन लोगों का कार का बिजनेस है, अभी हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट कार रेंट पे लेकर जा रहा है, उसमें ऑफिस में, उसमें वो लोग डबल प्रॉफिट कमा रहा है। इंटरनेट खुल गया, कैफे खुल गया, कपड़े का दुकान खुल गया। वाई? अगर देखिए इस सोसाइटी में 4 तरीके का लोग है, एक सैलरीड पर्सन, एक बिजनेस इंडिविजुअल, एक है प्रोफेशन और एक है अदर में हम फार्मर्स को डाल रहा है। तो फार्मर्स लोगों को नहीं आ रहा है, फार्मर्स लोगों का बच्चा भी इसमें नहीं पढ़ते हैं, और जो भी पढ़ते हैं वो लोग फार्मर्स नहीं है, वो लोग बहुत जमीन है उन लोगों की। तो दे आर क्वाइट कैपेबल टू प्रोवाइड, बिकॉज फार्मर्स जो डेली नीड्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जो खाने का सामान, खाना तो हम लोग बंद किए नहीं, खाना तो हम लोग खा रहे हैं ना। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? सबको मिल रहा है सैलरी सर। जिन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस, हाँ ये बात सही है कि शायद प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आ तो रहा है ना। बट वेयर वी आर इन अ स्टैग्नेंट सिचुएशन, वी आर डिक्लाइन डे बाय डे। एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो स्कूल को भी प्रॉफिट हो रहा है, स्कूल को भी पेमेंट जा रहा है। अभी भी स्टूडेंट्स जो है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने मेरे ब्रदर ने स्कूल पे किया है, स्कूल का फीस किया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बात पर मैं शशिकला मैडम से बात करूँगा, क्योंकि शशिकला मैडम की जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि वाई हम कहाँ से दे, एज ए अगर मैं अपने आप को एक स्कूल का ओनर मानता हूँ तो मैं कहाँ से पे करूँ। लेकिन एक तो फैक्ट जो है वो फैक्ट ये है कि स्कूल को भी पैसा आ रहे हैं,
दैट डजंट मीन कि प्री स्कूल को जीरो बैलेंस है और उसका प्रॉफिट जो है बैंक बैलेंस जो हम उसको बोलते हैं कि कैपिटल आई मीन दैट के फाइनेंस राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो भी उनके पास होते हैं। तो क्यों नहीं जो ऑनर है, स्कूल ऑनर है, अथॉरिटी है, सोसाइटी है, वो अपने इनकम से कुछ पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम टीचर जो है उनके हैं, हम उनके लिए हैं, हम उनके लिए रात काम करते हैं, ये उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके या जो अपने पहले के जो प्रॉफिट्स थे उसमें से कुछ हिस्सा हमारे टीचर्स को दे। मैं पूरा की बात नहीं करता हूँ। शशिकला मैडम। Yes, sir, I do agree with all those things. जिसके जहां पर आ रहा है वहां तो देना चाहिए, लेकिन जहां नहीं आ रहा है उसके बाद हम किए तो अभी बात आती है, जैसे तालीना मैडम बोले कि सारे हमारे बहुत सारा सेक्टर्स खुल गया है, सब कोई एम्प्लॉय है, अभी दे रहे हैं, सब सारा सेक्टर्स में सारा सब कोई को पेमेंट आ रहा है। तो हम अपना जो आप बोले कि हो सकता है तालीना मैम उस स्कूल में काम कर रहे हैं जहाँ बच्चे बहुत रिच फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां फिर हो सकता है उनके पेरेंट्स का कैपेबिलिटी है फिर भी वो नहीं दे रहे। लेकिन हम लोग जिस एरिया में काम कर रहे हैं सर, वहाँ क्या है, मिडिल क्लास फैमिली भी है, अपर मिडिल क्लास फैमिली भी है, लोअर पूरा आपका बिलो जो एवरेज पॉवर्टी लाइन के पेरेंट्स है वो भी है। तो अगर हम उस पेरेंट्स के अंदर सेग्रीगेशन, पहले हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको सेग्रीगेट कर दे कि कौन पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो सकता है उनको कुछ दिन के लिए फी माफ कर दे, ठीक है, और जो दे सकते हैं एटलीस्ट तो उनके ऊपर प्रेशर जाना चाहिए, वो देना चाहिए। अगर मिल रहा है तो जरूर एम्प्लॉयर को हमारा 30 to 40% कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उस 30 to 40% कंट्रीब्यूशन के लिए टीचर्स को जो एफोर्ड करना चाहिए, अगेन आई एम गिविंग इंपोर्टेंस ऑन दैट, टीचर्स को जो एफोर्ड करना चाहिए वो एफोर्ड कंटिन्यू होना चाहिए, तब जाके हम अपना एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि सर कि मैम कि सर हम क्लास लिए हैं, आप प्लीज उसके बारे में आप देखिए हर इश्यू हो, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, कोई ऐसा कुछ एम्प्लॉय होती है, कुछ क्रीम एम्प्लॉय होती है जो उस इंस्टीट्यूशन की जो लेवल है, फाइनेंशियल लेवल है, दूसरा स्टेटस है, बहुत ज्यादा अपर हाइट में ले लेते हैं। तो कंपनी उनको क्या कहता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बोनस देता है, एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन देता है। इसी तरह अगर हम हर टीचर्स अपना एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ इस डिजिटल क्लास को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करें तो वी कैन मेक ए प्रेशर ऑफ ओवर आवर इंस्टीट्यूशन दैट हम लोग एफर्ट किए हैं, हमारे एफर्ट से हमारे बच्चे भी एग्जैक्टली हमको पेमेंट दो। बाकी रहा सर आपका जो दूसरा बात था कि हम दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग, बट थिंग इज दैट कि हमारी क्या हम लोग अभी हम कोई टीचर्स इतना टैलेंटेड हैं कि इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाए, जहां हमारी रिकॉग्निशन हो बैजो जैसे प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है। वो तालीम हम कहां से लेंगे इस क्राइसिस पीरियड में, जो हमको मोटिवेट किया है कि हम फिजिकल क्लास से डिजिटल की तरफ जाएं और वहां नया नया इन्वेंशन करें। जहां नया इन्वेंशन करेंगे, अपने टैलेंट को पहचानेंगे, धीरे धीरे हम उस नया चीज को ये करेंगे तो अपने जाप को जाके प्लेटफॉर्म में, दूसरे प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं। एग्री। ये तीसरी बात ये आती है सर, यस, ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को रिपीट कर दीजिए, क्योंकि दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी टीचर, कि जो आप लर्न करो इस क्राइसिस से, आप लर्न करो कि हाउ टू डिलीवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एजुकेशन। यस सर, जैसे सर हम लोग क्या, पहले तो मेरे को ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आजकल का जो न्यू टीचर्स है इन द सेंस जो भी 40s के रेंज में एज के हैं, वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी है उनके अंदर। लेकिन 40 अक्रॉस जो कर लिए उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी कम है, मैक्सिमम आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, अडेप्टेबिलिटी कम है। Still then, I'm trying my best to learn the new things. जब ट्रेनिंग होती है स्कूल में, ऑनलाइन क्लासेस की, गूगल मीट की, गूगल क्लासरूम प्रोग्राम्स की, वो लोग जितना जल्दी कर पाते हैं, मैं अपने आप को उतना जल्दी डाल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये चीज मैं सीखा। लेकिन दोनों में और डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है,
कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं मेरा सब्जेक्ट में जितना कॉम्पिटेंट हूँ वो टीचर अपने सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन ये स्किल को अच्छे से, सॉफ्टवेयर स्किल जो है उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। तो मेरे अंदर जो क्राइसिस है वो है सॉफ्टवेयर को हैंडल करना। तो अगर मेरा सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी के साथ इस सॉफ्टवेयर के साथ में अच्छे से यूज टू हो जाऊं, हो सकता है मैं कल दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अपने आप को सेल कर पाऊं। वन ऑफ द बेस्ट हो जाएंगे मैडम Yes. तब, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएंगे तब, अगर हम अपने बस वही है। चीज है एग्जैक्ट। और वो सजेशन मेरे तरफ से भी है टीचर्स को कि वो चीज आपको करना है। आपको यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेंड्स। यस श्रीनिवास सर, मैं अब अभी- पर आ रहा हूँ श्रीनिवास सर। इस मैटर में हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं, जो कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है। जी सत्यजीत सिंह, हेलो, एक बार हेलो, श्रीनिवास सर को, श्रीनिवास सर से सर एक बार ठीक, बात कर ठीक। लेते हैं सर। यस सर। हाँ सर, मैं ये पांडा मैडम जो अभी बताए हैं बहुत अच्छा है। ये एक, इसको अगर हम एक अवसर के रूप में देखें और अपनी अपने टेक्निकल जो भी क्राइसिस है उसको अगर सुधार लेते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि हमको बहुत अवसर उससे मिलेंगे। हम अपने स्कूल के लिए नहीं सुधारे, लेकिन हम अगर अपने आप को सुधार लाएंगे तो उससे हमको दूसरे मतलब इनकम के भी सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि हमको अपने आप में ही सुधार लाना है। अपने विचारों को ही सुधारेंगे तो हमको एक क्राइसिस भी एक अवसर टाइप लगेगा। हाँ, ये मेरा है। इस मैटर में राकेश जी, हमारा एक चीज कहना है, जो हम लोगों को फिजिजिटल में जाना है। वी हैव टू गो फॉर फिजिजिटल। तो इसमें, इसके लिए हमको स्किलफुल लर्निंग आज के लिए बहुत जरूरी है, सब टीचर्स के लिए जरूरी है। और जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग के साथ साथ में ये पेंडेमिक हमको डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स गो फॉर लर्निंग, और वो स्किल लर्निंग करना है। कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में है, बट वी हैव टू गो फॉर द स्किलफुल लर्निंग मैकेनिज्म। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बोलना चाहते हैं सबके लिए, सोच का बदलो, सोच को बदलो, सितारा बदल जाएंगे। मेरे दोस्तों, सोच को बदलो, सितारा बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारा बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने का जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने का जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो, किनारा बदल जाएंगे। बहुत बिल्कुल। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक जो सॉल्यूशन अभी जो यूजर्स के तरफ से आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन जो यूजर्स के तरफ से आ रहे हैं, वो ये सॉल्यूशन है कि कुछ जगहों पर जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हम सिर्फ अगेन मैं सॉल्यूशनिंग पर ही मैं स्ट्रिक्ट हूँ। तो अभी कुछ जगह पर ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है और वो अच्छे जगह पर सेटल है, ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट्स, अगेन मैं यूथ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अगेन दैट कि अपने जो हमारा जो शो देख रहे हैं, मैं उनसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो हमारा बाद में भी देखेंगे शो, उनसे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि हमने पढ़ाया और वो अभी बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, ठीक है, मैं एज ए टीचर मैं भीख तो नहीं ले सकता। एक कहावत है ना, जो हमारी रिस्पेक्ट है कि एज ए टीचर मैं भीख नहीं ले सकता, भले ही मुझे क्या कहते हैं खेत में जाके काम करना पड़े, लेकिन हम भीख नहीं ले सकते हैं, ठीक है, किसी का दान नहीं ले सकते। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है एज ए स्टूडेंट टुवर्ड माई टीचर, कि अगर मेरा कोई टीचर जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अगर उनके साथ अगर आज के डेट में वो कुछ प्रॉब्लम्स में है किसी भी सिचुएशन से, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन ही हो, कोई भी सिचुएशन हो, कल के डेट में अगर उनको पास प्रॉब्लम है तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट कैन हेल्प टू देयर टीचर। सो दैट इज अनदर जो सजेशन जो आ रहे हैं, जो अपने से मैं उस चीज़ को मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, ठीक है। तलीना मैडम सर, तलीना मैडम सर, इसमें हम Yes, नहीं, इसमें हम सहमत नहीं है। नहीं, एक सेकंड, मैं इसमें हम तलीना मैडम सहमत से बिल्कुल नहीं है। सर एक मैं तलीना मैडम से पूछना चाह रहा हूँ, अगर मान लेता हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और अभी इस क्राइसिस में अगर मैं
आपको आई मीन जस्ट मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो एक शिक्षक का, एक टीचर का जो साइकोलॉजी है, जो सोच है, ठीक है, वो क्या है? अब कोई टीचर Sir, what type of help? As a student? एज जस्ट अ मॉनेटरी हेल्प, कमर्शियल हेल्प? No, sir. Impossible. No, sir. ओके ये No, sir. अभी हम हमारे बिल्कुल इसमें सहमत No, हैं। sir. Impossible. ओके Sorry, sir, I just want to interrupt. यस सर, मैं यस I just want to interrupt. यस मैडम। हाँ, सब नो बोले, सर भी होता, सर भी उसमें एग्री नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं न्यूज पेपर में पढ़ रही थी, Exactly. न्यूज पेपर पढ़ रही थी, और उसमें देखी कि चेन्नई की एक टीचर, उसको स्कूल उसको टारगेट दिया था कि इतना एडमिशन आना है, कि इतना फी आना है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब दिया था। और वो टीचर एक अच्छा टीचर था, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को पहले से पढ़ा चुका है, और उसका जितना टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो स्कूल उसको निकाल दिया। कि पैंडेमिक सिचुएशन में टीचर स्कूल को लगा कि ये टीचर भी उसके लिए बेनिफिटेड नहीं है, तो निकाल दिया। अब वो टीचर भी बेचारा क्या करे, वो टीचर बनाना सेलिंग की बिजनेस किया, केला का ठेला लगाया और बेचा। कहीं ना कहीं उनका जो पुराना सारे स्टूडेंट्स थे, ये क्राइसिस के बारे में जरूर हमारा टीचर अभी केला बेच रहा है, जो इतना नॉलेजियस टीचर था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस उसको है, ये लगा। और जो पुराना स्टूडेंट्स थे उनके, वो सारे स्टूडेंट्स सारा गैदर किए 2 लाख के करीब, और उसको फाइनेंशियल हेल्प लिए कि आप दूसरा कोई बिजनेस स्टार्टअप कीजिए, क्योंकि हमारा टीचर्स हैं आप। लेकिन ये तो जहां तक की बात है सर, वो स्टूडेंट्स की जो वैल्यू हम फिजिकल क्लास में दिए थे, लेकिन आपको लग रहा है कि आज का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये कमर्शियलाइजेशन हो गया, खाली हम कमर्स अर्न करने के लिए मनी, हम नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू देना चाहिए, जो फिजिकल क्लास में जो वैल्यू देना चाहिए, वो वैल्यू अब हम ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते डिजिटल क्लास में। तो वो एग्री है, आगे जाके हमको डिफिकल्ट होगा, वो एग्री, आगे जाके डिफिकल्टीज होगा। जी मैडम, जी जी हाँ, और मेरे को भी अगर आप बोलेंगे तो मैं टालिना मैडम होता सर के साथ सहमत हूँ कि अभी भी स्वाभिमान बचा हुआ है, बच्चों से हेल्प लेना अभी भी हम नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ हम वैल्यू सिस्टम दिए हैं बच्चे हाँ। को, बच्चा सफरिंग कर रहा है टीचर्स, और तब जाके बच्चे लोगों वो सब देख के टीचर्स को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। और वो फिजिकल जमाने के क्लास में जो करते थे, बोलूंगी मैं, कुछ 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले, तब ये पॉसिबल था। अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि हम कुछ वैल्यू इनकलकेट कर पा रहे हैं बच्चों के अंदर। नहीं मैडम, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कहाँ कर रहा हूँ कि जो 2 साल 4 साल पहले पास आउट किया। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमने 20 साल पहले पढ़ाया था। मैं उन स्टूडेंट्स वो की सही बात बात है। राइट। हाँ, एकदम सही है। हम लोग एल्यूमिनी फंक्शन करते हैं अपने स्कूल में, एल्यूमिनी फंक्शन जब करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर हो गया है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस किया है, सब एल्यूमिनी फंक्शंस में आते हैं स्कूल की बढ़ाने के लिए। वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एल्यूमिनी फंक्शंस में, अब करते हैं। वो हेल्प मैडम, वो हेल्प ये नहीं हो सकता कि हम आपको पैसे दे रहे, वो हेल्प ये हो सकता है कि मैं आपको किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करवा दूं, या मैं वो हेल्प ये हो सकता है कि किसी, अगर आप मान लो कि वो टीचर जो केला का बिजनेस करने लगा, हो सकता है कि हम आपको किसी टीचर्स को मैं अपने रेफरेंस के थ्रू किसी अच्छे जगह पर मैं पोस्टिंग करवा सकता हूँ, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैं अभी सिर्फ सब कुछ सही है, लेकिन जैसे श्रीनिवासन सर बोले ना कि हम तो अगर ऐसा करेंगे तो प्लेटफॉर्म में अपने आप को बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन स्कूल कहाँ जाएगा? हम भी अभी भी श्रीनिवासन सर के साथ भी हम ये एग्री करते हैं। अगर अब हम टाई अप करके दूसरे स्कूल के साथ अगर दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन में अपना कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दें, ऐसा भी हमारा स्कूल है, खास करके मैं पर्टिकुलरली मेरे स्कूल के बारे में ही बोल रही हूँ सर, एक्सेप्ट नहीं किया, स्कूल अलाउ नहीं करेगा। स्कूल अभी उसमें भी ये करेगा कि अभी तक आप एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय यू आर द पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। अभी भी आप कोशिश में लग जाओ कि स्कूल को कैसे ट्यूशन पे आएगा, स्कूल के साथ जुड़ो। अगर वही चीज आप दूसरे प्लेटफॉर्म में बेच रहे हो, फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कैसे जुड़े रह सकते हो?
ये चीज भी आती है। वो तो एनडीए, वो तो हमारा एनडीए और एमएसए के जो हमारा आई मीन दैट एक कोलैबोरेशन होता है, तो ऑब्वियसली हमको उस बॉन्ड के साथ ही काम करना है। हमें जो है अपने बॉन्ड के अगेंस्ट में जाके काम नहीं करना है, ठीक है, वो तो ट्रू है। सर निवासन सर आप कुछ बता रहे थे, श्रीनिवास सर आप कुछ बोल रहे थे, सर बताइए सर। यस सर, सज्जित सर, जब तक कि श्रीनिवास सर का कनेक्शन होता है आप बताइए। आप जो बात बोले ना, मतलब देखिए हमारा प्राचीन युग से आज तक जो शिक्षकता है, अगर हम गुरुकुल प्रथा में जाते हैं तो हम लोग माधुकरी करते थे। माधुकरी मतलब टू बेग, यस, हम भी बेगिंग किया, हमारा बच्चे भी बेगिंग किया, ये हमारा इतिहास बताते हैं। लेकिन बेगिंग किसके लिए करते थे? अगर ये राष्ट्र के लिए है, ये एक जन मंगल के लिए है, ये समाज के लिए है, तो हमारा विवेकानंद जी भी बेगिंग करके लाके रामकृष्ण मिशन को खड़ा किए थे, तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। लेकिन आई एम नॉट द क्रिपलर, हमने क्रिपलर नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। हम इसमें एक लाइन श्रीमद् भगवद गीता से बोलना चाहते हैं, और ज्ञानेन तु ज्ञानम आकृतम तेन मुज्जन्ति जंतवाहा। इसका मतलब होता है, हे ह्यूमन बींग्स, हे द टीचर्स, you are suffering not because the condition of pandemic, but due to the ignorance which covered your intelligentsia. हमारा ज्ञान को कवर किया है एक स्किल, एक टेक्नोलॉजी, जिसके कारण आज हम सफरिंग कर रहे हैं। जो मैडम भी बोले, जो हमारा पैनल का ईच एंड एवरी एजुकेशनिस्ट बोल रहे हैं, तुमको मेरे भाई हमको ट्रेंड होना होगा, हमारा अज्ञान को दूर करना होगा, तभी हम ज्ञान का विकास करके हमारा बच्चे तक पहुंचा पाएंगे। और ज्ञानेन तु ज्ञानम आकृतम तेन मुज्जन्ति जंतवाहा। वी आर सफरिंग नॉट बिकॉज द कंडीशन ऑफ पेंडेमिक, वी आर सफरिंग ड्यू टू आवर इग्नोरेंस which covered our intellect। तो हमारा जो इंटेलिजेंसिया है, हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो आप बोल रहे थे, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक ट्रेनिंग प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग का कुछ कमी है, धीरे धीरे हम लोग इक्विप कर लेंगे, इसलिए कोई नर्वस होने का जरूरत नहीं है। अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, आप हमसे संपर्क करें। मैं तो इसी इंडस्ट्रीज में हूँ, राइट, मैं करीब 18-20 साल से इसी इंडस्ट्रीज में हूँ। अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं देता हूं ना ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग से हमारा हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, या मैक्सिमम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो सकता है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु विल गिव यू द ट्रेनिंग, एंड आई वोंट चार्ज एनीथिंग, एंड आई वोंट सर एक चीज जो प्रैक्टिकल चीज है ना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा बच्चा आज पाकिस्तान का ऐप पढ़ के मेडिकल का तैयारी कर रहा है, पूरा भारत का बच्चा का बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान जैसा कंट्री का प्रोफेसर का एप्स लेके इन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री का एप्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो मटेरियल, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज को अगर हम हमारा सैलून क्लास बना के, एक अच्छा डेकोरम बना के वो बच्चा तक हम पहुंचाएंगे, तो हमारा बच्चा दूसरा यूट्यूब से डाउनलोड करके क्यों पढ़ेगा? अगर हम कॉन्फिडेंट है, तभी हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट होगा हमारा प्रति। पहले हमको हमारा चीज में कॉन्फिडेंट होना है। और इसीलिए एक क्वेश्चन सर मुझे आ रहा है, एक क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं पहले शशिकला मैडम से पूछूंगा कि क्या हमारे पास कोई एक ऑथराइज्ड और यूनियन या ऑथराइज्ड बॉडी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, मैं भी स्टेट्स की वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में क्या कोई प्राइवेट यूनियन काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है हमारे पास प्राइवेट टीचर का, जो कि सरकार के साथ इस चीज़ को किस मामले में इसको बात रख सके? सर अभी तक तो हम लोग का कोई प्राइवेट ऐसे यूनियन अभी तक हम लोग फॉर्म नहीं किए, लेकिन टीचर्स एक प्लेटफॉर्म रहता है, तो जो हम हर टीचर्स को रजिस्टर करना पड़ता है। अभी तक हमारे स्कूल के जितना टीचर्स है, जहाँ तक मेरे ये है, हम लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी अलाउ नहीं करता है।
कभी कभी हम लोग को जैसे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मान लीजिए कहीं कहीं हम लोग का जो पीएफ या जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिला है, हम लोग कोशिश किए थे एक बार कि उस प्लेटफॉर्म में के साथ रजिस्टर करके आप अपना वॉइस रेज करें, तब हमारी इंक्रीमेंट काट दिया गया था। तो उस हिसाब से कुछ तक हम लोग प्रेशराइज्ड होके हम आप लोग को, मतलब जब मैं इस इंस्टीट्यूशन का बात नहीं कर रही हूँ, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ अभी मैं जुड़ी हुई हूँ, पहले एक इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं जुड़ी हुई थी, उस इंस्टीट्यूशन का बात कर रही हूँ, जहाँ हम गए थे और हम अपना बात रखना चाहते थे, लेकिन तब हमारा इंक्रीमेंट काट दिया गया था, क्योंकि हम उस टीचर्स एसोसिएशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करके अपना आवाज रेज करना चाहते थे। तो वही बात है कि है तो ऐसा, अगर हम फाइंड आउट करें हमको मिल जाएगा ऐसा, लेकिन कहाँ तक हम लोग के पास कुछ रिस्क फैक्टर रहता है सर। जैसे अभी अगर हम अपना इंस्टीट्यूशन से पूरा अपने आप को अलग कर लें तो हम कर सकते हैं ये चीज, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन के साथ हम जुड़े हुए हैं तो कहाँ तक अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, या ऑब्वियसली वो तो सोल्यूशन नहीं है कि हम जॉब छोड़ के फिर हम यूनियन बाजी करें, तब तो कोई मतलब ही नहीं होता है हाँ, यूनियन में जाने का। कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्की हो जाता है सर। हाँ, एक चीज हम बता रहे हैं सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसा आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र में भी डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसी टाइप का टीचर्स का भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। जैसा आज हमारा सीबीएसई का सहोदया बोल के, सहोदय मीन्स टू अराइज ऑल टुगेदर, सब मिलके एक साथ में जागो, एक साथ में उद्वर्तन हो जाए। तो ये एक क्लस्टर बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, सीबीएसई का सहोदया बोल के नाम है। तो थ्रू सहोदया भी इस चीज को हम लोगों आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म है। तो जो सहोदया जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसने अभी तक राइज नहीं किया इस चीज के लिए वॉइस? एक्चुअली हम जो मैडम ने बोला ना, जो एक ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे जगह में, आज हमारा स्कूल, प्राइवेट स्कूल हाई कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, अभी हाई कोर्ट में भी एक दिया है, जो स्कूल आपका ई लर्निंग प्रोसेस में जा रहा है, वर्चुअल क्लास ले रहा है, उसका फी आपको देना पड़ेगा, वो पेरेंट्स को बोला गया है। लेकिन पेरेंट्स भी जो पहला पॉइंट था, अपना ईगो में ले रहा है, पेरेंट्स भी अपना सोच में ले रहा है, जो भाई अगर इसको स्वाइप कर दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो उनको पढ़ाना है तो उनको पैसा तो देना है, पढ़ाना है तो उनको पैसा देना है, चाहे आप इस स्कूल में पढ़ाएं कि आप उस स्कूल में जाए, राइट। शशिकला मैडम के स्कूल से निकल कर आप श्रीनिवास स्कूल में जाए, आपको पैसा तो देना है, तो आप पैसा तो यहाँ कोई भी स्कूल में देना पड़ेगा, तो पैसा आप यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? और एक चीज इसमें आ रहा है, जो हम लोग को वी हैव एक्चुअली, हम लोगों को जो टीचर्स है ना, वी हैव टू गेट टेक्नो ड्राइवन विथ ब्रांड वैल्यूज इंटैक्ट, ब्रांड वैल्यू को रखते हुए करना होगा। वो तो सही बात है, टेक्नो ड्राइवन है हम लोग। एक बार श्रीनिवास सर से मैं फिर जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, उनका जो है थोड़ा सा डिले है श्रीनिवास सर का। श्रीनिवास सर, अगर अब मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, अगर मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक तो ये कि अगर इस तरह का कुछ आपके नज़र में कुछ इस तरह का यूनियन है तो आप बताइए, सो दैट कि हम इसके माध्यम से जो है सभी टीचर्स को बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स अ वन। दूसरा ये, यस सर मैं एक इसका आंसर दे देता हूँ। एक तो टीचर्स का रहता है सर यूनियन, ऐसा तो हमारे नजर में अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन टीचर्स में सबसे बड़ी कमी क्या रहती है सर, वो क्या चाहता है कि आंदोलन दूसरा करे, है ना, आंदोलन का वेट करता है। वो ये सोचता है क्रांतिकारी दूसरे के घर में पैदा हो, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम टाइम पे स्कूल नहीं, और हम ऑफिस के स्टाफ रूम में बैठ के आंदोलन दूसरे के कंधे पर रख के हम त्यागना पड़ता। तो इसीलिए आंदोलन ऐसा नहीं होता सर, उसके लिए एक दो को अगर कुर्बानी देना पड़ेगा तो हमको तब जाके आंदोलन जागेगा सर। उसी का यही खासियत है, जरूरी है। जहां तक कि मेरे विचार ऐसा है, जरूर मेरा जहां तक कि नॉलेज है, आंदोलन हो तो उसके लिए हमको भाग लेना पड़ेगा। जरूर, वो तो भाग तो लेना ही पड़ेगा। तरीना मैडम, अगर आपको अगर इस तरह का अगर ऑप्शन मिले, ऑब्वियसली जहाँ तक कि कोई भी आपके स्कूल तो नहीं चाहेगा कि आप जो है किसी सोसाइटी से जुड़े, इस तरह के किसी यूनियन से जुड़े, लेकिन अगर फिर भी अगर जुड़ने का अगर मिले तो आपका क्या ओपिनियन होगा, आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे?
ऑब्वियसली उस केस में आपके लिए ये हो सकता है कि जॉब हो और स्कूल को बोले कि नहीं आप यूनियन से जुड़ गए, आपको हम नहीं चाहिए, आप जाओ दूसरी जगह, हो सकता है। आप चूंकि यंग जनरेशन से हैं, ठीक है, आप Sir, अंडर 40 हैं। one thing I learned in my management class. One thing I learned in my management class that in private organization, boss is always right. So I will strictly follow my leader, my boss, Dr. Satyajit Hotar. नहीं ठीक है, आई मीन बॉस सर इट्स अ ट्रू हमारे सर मैं अपने प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ सर आपको। हमारे प्रिंसिपल एक खुद ही क्रांतिकारी विचार वाले, वो कभी ऐसा झुक के काम करना, हमारे सचिव होता सर से हम कई चीजें सीखते, वो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं करते। वो हमेशा यही बोलते हैं कि सह के कहीं काम नहीं करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। उनका हमेशा मोटिवेशन उसी साइड में रहता है। मैं होता नहीं, सर से काम करके एक चीज बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा हाँ, कि उनका विचार श्रीनिवासन सर, आपको भी पता है सर से काम करके एकदम सर राम सर होता सर से काम करके एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि होता सर बहुत मन मतलब दिल खोल के काम करते हैं। मतलब जो मन होगा तब करना, अगर मन नहीं होगा मत करो, जाओ, अगर मन नहीं है तो मत करो, क्लास में मत जाओ। बट ये बहुत अच्छा लगता है। ये चीज होना भी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी चीज के लिए अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं अपने भी बच्चे को बोलता हूँ तुमको अभी पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ो, फोर्सफुल्ली उसको बैठाने की जरूरत नहीं है पढ़ाने के लिए। उसी तरह से टीचर को भी फोर्सफुल्ली बैठाने की जरूरत नहीं है। बच्चे का नहीं है, टीचर हम लोग Even के लिए भी teachers ये के भी, teachers के लिए भी। छुटकारा है। एग्जैक्टली टीचर्स के लिए भी है। अगर मान लो आज मेरा सेशन करने का मन नहीं है फॉर द XYZ रीजन, तो एक प्रिंसिपल का ये ड्यूटी भी बनता है कि उसको बोलेगा अच्छा ठीक है तुम्हारा भी मन नहीं है, आई नो कि यू आर ऑलवेज टेकिंग ऑनलाइन, आई मीन ऑन टाइम, यू आर टेकिंग ऑन टाइम, यू हैव अ क्वालिटी ऑल टुगेदर। तुम्हारा मन लेने का नहीं है, इसका मतलब कुछ तो रीज़न है। तो हम उस टीचर के भावना को हम समझ के हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स को कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि आप अगर क्लास के अंदर में चले भी गए ना, आप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, आप जो है ना टाइम पास करेंगे, राइट? क्योंकि अगर मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते, तो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। सर आप दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछे? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कि हमने पूरा डिस्कशन किया, मैं अब जो है डिस्कशन को लास्ट मोड में जा रहा हूँ। हमने पूरा डिस्कशन किया कि हमारे क्या क्या सोल्यूशन है, ठीक है, और हमारे पास पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स के इश्यूज़ हैं, और हमारे पास स्कूल ऑनर के इश्यूज़ हैं, और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं। अगर पूरे ऑल टुगेदर सिचुएशन को देखते हुए आपसे पूछे कि आप एक सॉल्यूशन आप बताएं कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके तरफ से, तो आप क्या बताएंगे? मेरे तरफ से तो फेस टू फेस क्लासेस ही अच्छी है सर। डिजिटल क्लासेस जितना बढ़ाएंगे मॉरल वैल्यूज खत्म होते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है ओवरऑल सोल्यूशन में। बट सर डिजिटल क्लासेस अभी के टाइम में सर फिजिकल एग्री विद राव सर, एग्रीड विद राव सर, 100% एग्रीड। बट अभी हाँ के टाइम में मेरी बात ये है सर, आप अगर सिर्फ इनकम के लिए अगर 1-2 महीने, कोविड का प्रॉब्लम बहुत सालों नहीं है सर, 2-3 महीने का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, अभी तक 2-3 महीने का प्रॉब्लम है सर। इसको इतना बड़ा भयंकर बना दिया गया है, जबकि उतना भयंकर नहीं है, क्योंकि ना एप्स वाले भी बिजनेस कर रहे हैं सर। जितने जूम ऐप कमाए हैं सब कर रहे हैं सर, सब बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल सीखना जरूरी है, लेकिन एकदम मॉरल वैल्यू बेस खत्म करके डिजिटलाइज करना गलत है। शशिकला मैडम, सेम क्वेश्चन टू यू, ओवर टू यू, कि सभी सॉल्यूशन को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सॉल्यूशन आप दें जहां पर कि आई मीन स्कूल, पेरेंट्स, एवरीवन शुड बी शिंक एंड देन दे आर एग्रीड टू मूव ऑन द नेक्स्ट जर्नी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, तो क्या हो सकता है? So just I wanted to say this thing that वही सेम निष्कर्ष निकलता है सर। आप जो बात पहले बोले थे कि we should put our best level to make our class a digital class successful, and for that at least we expect that the 30 to 40% the employer should pay
and 20% the state and the 20% should be bear by the government, and we are ready to sacrifice our 20%. 20%. So that at least 80% we need for our survivability. We will think that this is the year of survivability. At least survive करने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए. Ultimatum तो सर वही है, मनी नहीं मिलेगा तो हम एग्जिस्ट कर नहीं पाएंगे. और ब्यूरोक्रेटिक डिले इतनी हो रही है, हमारी जो पॉलिटिशियंस है उनके कान में अभी तक बात नहीं जा रही है. जैसे श्रीनिवासन सर बोले 2-3 टीचर पहले सुसाइड करेंगे, ये बात जाएगा, हो सकता है उसके बाद पॉलिसी में कोई चेंजेस आए. नहीं उसमें सुसाइड करने की जरूरत नहीं है. वो सुसाइड करने से तो बेहतर है कि आवाज उठाएं और हम आवाज उठाएं. जैसे कि अभी मोदी सर ने नहीं बोला है, मोदी सरकार ने बोला है कि वोकल फॉर लोकल, आवाज उठाना सर. एकदम वोकल फॉर लोकल होना चाहिए सर. लेकिन बात यह है ना, जब तक हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्राइसिस फील कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वी आर फीलिंग क्राइसिस एंड नोबडी इज देयर टू सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स. हर सेक्टर के हर लोगों को ये दिखाया गया गवर्नमेंट की पॉलिसी में, लेकिन हम लोग के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है सर. हम लोग का इतना ज्यादा डिटोरिएट हो गया इकोनॉमिकली, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है. हाँ, इतना बोल सकती हूँ मैं कि अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे क्लास को अच्छे करें, और कम से कम जो 40% आप बोले, कम से कम एम्प्लॉयर की तरफ से 40% आ जाए. बाकी गवर्नमेंट अगर कंट्रीब्यूट कर दे हमारे बात सुन के थ्रू यू, देन वी विल बी थैंकफुल टू यू सर, सो दैट यू कैन. एक क्वेश्चन अभी आ रहा है जो मैं आपसे ही वो क्वेश्चन का आंसर कराना चाहूंगा. जी सर. क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बहुत सारे एनजीओ हैं, जनरली हम उसको बोलते हैं कुरमुत्ते की तरह एनजीओ है, राइट? जी. जो मशरूम की तरह जो एनजीओ है, क्या वो एनजीओ में हेल्प नहीं कर रही है, या वो सिर्फ नाम के लिए है? अभी तक तो सर एनजीओ जो जितना भी एनजीओज है, मैक्सिमम अगर हम अच्छे से एनालाइज करते जाएंगे, जब प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं तो बहुत सारे एनजीओज दिखाते हैं तो एनजीओ है सर, लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं. अगर वो एनजीओ भी हमारे साथ आ जाते हैं और बोलेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, कहीं ना कहीं वो लोग भी हमको बोलेंगे कि आप ऐसा करोगे, थोड़ा इसमें पैसा डालोगे, तब जाके हम अपने बात को वहां पहुंचा देंगे, नहीं तो हम आपको इस फील्ड में आपको ट्रेनिंग देंगे. दिखता नहीं है सर, वो लोग जो दिखाता है ना, जितना दिखता है उतना वो लोग करते नहीं है. अगर ऐसा एनजीओ है आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे उस ऐसा एनजीओ के साथ हम लोग जुड़ने के लिए सर. एक तो सजेशन मैं दे सकता हूँ, प्रोबेबली आई डोंट नो कि कितना तक वो कारगर हो सकता है, बट आप लोगों ने नाम सुना होगा एक स्टेप का. ओके सर. एक स्टेप्स, जो हमारा जो इन्फोसिस के फाउंडर है नंदन नीलकनी सर, ठीक है, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और शायद जानकारी भी नहीं हो कि होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट 100% मुझे 99% तो श्योर हूँ कि आप लोगों के पास जानकारी ना हो. जो पूरा का पूरा आधार, ठीक है, ये उनके में बना हुआ और उन्हीं का फंड है, गवर्नमेंट का फंड इसमें नहीं है. और दूसरा जो दीक्षा पोर्टल है ना, diksha.gov.in, ठीक. यस सर, यस, वो तो इससे भी आता है, सीबीएसई से भी आता है उस पोर्टल के बारे में. पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन आता है, लेकिन उस पोर्टल को बनाने में, ठीक है, उनका कोई योगदान नहीं है. वो पूरा जो योगदान है, मैक्सिमम योगदान जो है, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, एक स्टेप फाउंडेशन का है. तो लेकिन हाँ, आप अगर हम इंडिविजुअली उनको हिट करेंगे या उनसे बात करेंगे तो उसका भी कुछ वर्कआउट नहीं होगा. लेकिन अगर हम एक कुछ वे में अगर हम कर सकते हैं, यस, ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, अगर हम यूनियन वाइज कुछ उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें इस सिचुएशन में जो कुछ मदद करे, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमें वो कुछ सोल्यूशन मिल सकता है. आई एम नॉट श्योर कि, बट चूँकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास जो है अच्छी सोच है, उनके पास करने की जो सोच है ना, करने की जो सोच, कि आपके पास पैसा हो तभी कर सकते हैं, आप करने की सोच होना चाहिए, ठीक है. तो जो उनके पास, जो मैंने उनके साथ काम किया तो जो मुझे लगा, तो मैं इसलिए आपको सजेशन किया. तो सेम क्वेश्चन सत्यजीत सर आपके पास, क्या आप किस इस तरह के कुछ एनजीओ को जानते हैं कि जो इस एजुकेशन सिस्टम में आपको हेल्प कर सकता है? आपका म्यूट है, आप म्यूट हैं सज्जित सर, आप म्यूट हैं. हाँ, कुछ है जो हेल्प कर सकते हैं, बट अभी भी उन लोगों का अप्रोच डायरेक्टली हम लोग के पास तक नहीं पहुंचा है, अभी तक हम लोग के पास नहीं आया है. ठीक है, बट दे कैन डू, जैसा थ्रेड है,
देन एजुकेशनल स्पेक्ट्रम है, ऐसा बहुत सारे है जो काम कर रहे हैं। बट इस लेवल तक प्राइवेट स्कूल का बात में ना बहुत सारे पहले लोगों का मन में जो सोच है उसको तो पहले उनको इरेड करना होगा, देन ओनली दे कैन जॉइन विद अस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे भी और अगर श्रीनिवास सर और शशिकला मैडम भी अगर दे सकती, क्या आप कुछ नाम दे सकते हैं हमें, सो दैट कि अगर हम अपने तरीके से हम अपने तरफ से अगर कुछ कोशिश कर सकते हैं, हम कुछ श्योर तो नहीं कर सकते बट हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ संपर्क करें और उनको कुछ इस तरह का मोटिवेट करें कि एटलीस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर स्टेट वाइज जो है उस कुछ वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी सोनू सूद ने किया हेल्प या सलमान खान ने कुछ हेल्प किया, उसी तरह से हम कुछ टीचर्स को हम अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, डेफिनेटली वी विल ट्राई। ठीक है, आप मुझे लिस्ट दे दें, ठीक है, ऑफलाइन लिस्ट दे दे, ठीक है, तो मैं उस पर जो है कोशिश करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दे सकते हैं तो मुझे लिस्ट दे। I'll try. What I'll do is I'll share that all those the discussion abstract and then. So just a minute, I just wanted to know what type of help they can able to extend to the teachers. मैडम यहाँ पर जो है वो आपको अच्छा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है हो सकता है कि वो कुछ ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मीन्स स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको एक स्मार्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करे, हो सकता है कि आपको अगर डिजिटल क्लासेस लेना है तो उससे रिलेटेड जो है क्या गजेट्स की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ गूगल मीट या फिर जो जूम मिल गया तो हम जो है डिजिटल क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्मार्ट बोर्ड्स की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वो आपको प्रोवाइड कर सके सो दैट कि आप उसमें ईजी और इफेक्टिव, जहाँ पर कि पेरेंट्स आज बोलते हैं कि अच्छा क्लासेस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप उस माध्यम से जो है कि अच्छा एजुकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये वर्कआउट किया जा सकता है, वो ये चीज़ वर्कआउट किया जा सकता है। दिस इज जस्ट माई व्यू कि वो अगर चाहे तो बहुत लेवल पर जो है हमें जो है हेल्प कर सकता है। Thank you, sir. Thank you so that you have given the information, and we will try to give the offline list of the teachers who actually need. Actually, we also need that. Really, we need that setup where we can digitally improve ourselves. वो setup हम लोग के पास नहीं है, जो मिनिमम रिसोर्स में हम कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जो उतना चैलेंज मतलब दूसरे के साथ कॉम्पिटेटिव नहीं हो पा रहे, एफिशिएंसी बढ़ा नहीं पा रहे। अगर वो सेटअप मिल जाए, हो सकता है हम एफिशिएंट हो जाए। जी मैडम। तो हम अपने डिस्कशन को लास्ट मोड पर लेके जाते हैं और हमने जो डिस्कशन किया उससे जो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू में निकला, उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू में यही है। सबसे पहले तो अगेन आई सैल्यूट टू द ऑल माय टीचर्स दैट ओके दे स्टिल सेइंग दैट कि मर जाएंगे बट मैं भीख नहीं लूँगा और किसी से हेल्प नहीं लूँगा। तो जो पूरा मुझे जो कैची और ये जो एक जो बोलते हैं ना कि अंदर से जो आपको हिट करता है ना, तो ये सेंटेंस वो रहा आप सबका। और खासकर से तलीना मैडम का जो एक्सप्रेशन रहा, नो आई कांट टेक इट राइट, तो वो अच्छा एक लगा कि नहीं, हमारे पास रिस्पेक्ट, अभी जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, हमने उस मोरल को अभी तक लूज नहीं किया है। हमने अपने मोरल को लूज किया, कहने मतलब है कि शेर जो है वो मांस ही खाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो रिस्पेक्ट लेगा चाहे वो कुछ भी हो जाए, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली मैं सभी टीचर्स को एक सैल्यूट दूंगा। दूसरा कि जो हमारा जो सॉल्यूशनिंग जो प्रॉब्लम्स को भी है, दूसरा जो सॉल्यूशनिंग का जो हमने डिस्कशन किया कि अगर हम 40-20-20 या कुछ इस तरह का रेशियोज पर काम कर लें, ठीक है। दूसरा टीचर और पेरेंट्स के भी जो एक सजेशन है पेरेंट्स को कि वो भी अगर जो सक्षम है पे आउट करने के लिए तो वो पे आउट करें। जो स्कूल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए एक सजेशन है कि वो कोशिश करें कि एक पार्ट बाय पार्ट जो है सैलरी को रिलीज़ करें। पूरा सैलरी अगर नहीं भी दे सकते हैं तो वो कुछ एक परसेंटेज वे में जो है वो जो है रिलीज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे कुछ NGO से अगर हम कुछ मदद ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मदद हम अगर ले सकते हैं, कुछ NGOs को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टीचर्स को आगे आए और प्राइवेट टीचर्स को हेल्प करें फॉर द डिजिटलाइजेशन एंड इन द अदर्स मीन ऑल्सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई इन देयर ओन वे।
राइट। उसके बाद जो हमने जो डिस्कस किया था कि डिफरेंट मोड ऑफ दैट कि क्या होना चाहिए कि हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आफ्टर दैट दिस ऑल द कोरोना कोविड-19 सिचुएशन, और हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि हम डिजिटल नहीं होके नॉट नाउ हमें डिजिटल ही एक ऑप्शन है, हम एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है, इफेक्टिव वे में, और एक बोलते हैं ना, जिसको कि हम बोलते हैं ना, ध्यान से तन मन से जो है हम जो डिजिटल एजुकेशन है उसको हम इफेक्टिव रखें और कंटिन्यू रखें। So that's basically that a request to that all those the teachers associated for that digital education system or from that schools, right? और जो प्रिंसिपल है उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करें, स्कूल एडमिन से भी रिक्वेस्ट है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऑल टुगेदर जो एब्स्ट्रैक्ट यही निकला कि ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में वो क्या कहते हैं, घंटा कौन बांधे। तो हम जो है क्या कहते हैं, एसोसिएशन में जा नहीं सकते, जो कि एक हमारे लिए आवाज़ बनेगा, तो हम वो कर नहीं सकते ड्यू टू द लॉज एंड ऑल टुगेदर प्लेंटी ऑफ NDA MSA लीगल ऑल टुगेदर, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा डिस्कशन का जो एक ऑब्जेक्ट सार निकला, जो एक MOM जो हमारा जो मीटिंग का जो MOM निकला, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका एक एब्स्ट्रैक्ट निकाले, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों का एक अगेन सभी टीचर्स का एक धन्यवाद। अगर आप लोग लास्ट में अगर कुछ मिस पॉइंट्स हो गए हैं तो 1-2 सेंटेंस में अगर आप दे सकते हैं शशिकला मैडम या सत्यजीत सर, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम अपना डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो नहीं पता, Yes, sir. मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच Yeah, सर। thank you ma'am for joining. हम चाहते हैं कि हमारा आवाज कम से कम आपके थ्रू जिस प्रॉपर प्लेटफॉर्म में पहुंचना चाहिए पहुंच जाए, सो दैट हम लोग टीचर्स ग्रुप के ऊपर भी थोड़ा गवर्नमेंट की थोड़ा फोकस हो। जरूर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम संभव जो हमारा जो वॉइस है, हम इस वॉइस को जो है राइज करें और ये जो है गवर्नमेंट तक भी पहुंचे। सब्जी सर, आपका लास्ट स्टेटमेंट। हमको खाली एक चीज बोलना है, मेरे प्रिय शिक्षक वर्ग, हम लोगों को अभी ये क्राइसिस के टाइम में थोड़ा शांत रहना है, इमोशनली बैलेंस करना है। इकोनॉमिकल क्राइसिस कुछ दिन के लिए आया है, ये हम लोग ओवरकम कर जाएंगे, और हम लोगों को फिजिजिटल में जाना है, थोड़ा कॉम्पेंसेट होना है, कॉम्पेशन रख के काम करना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, कॉन्वर्सेशन करना है पेरेंट्स के साथ में, बच्चे को एंगेज रखना है, और टेक्नो ड्राइवन होना है, ब्रांड वैल्यू को छोड़ना नहीं है, DNA को इंटैक्ट रखना है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देना है। और पेरेंट्स से एक बात बोल रहे हैं, माय डियर पेरेंट्स, आप जो भी हो जाइए, आपका बच्चा का गुरु हम है, और हम ही रहेंगे, और हम जब आवाज देंगे तो आप उसको रुक नहीं सकते हैं। आज हम कोरोना को कमांड नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना हमको कमांड कर रहे हैं, इसलिए हमारा बच्चा का हेल्थ देखते हुए हम आपके साथ उसको रखे हैं। लेकिन जिस टाइम हम आवाज देंगे, आप हमको पैसा भी देंगे और वही बच्चा आपको कंपेल करेगा देने के लिए, इतना हम लोगों को ताकत रखते हैं। यस, जरूर सर। ऑब्वियसली जो कि हम जो है क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, वही बिल्कुल शिक्षा का एक जो है मूल मंत्र है। और इसी के साथ हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगेन दैट कि द यंग इंडियन टॉक में आपका आप सभी दैट कि टीचर्स का धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लिए और यूज़र्स के लिए, दर्शक के लिए एक बात मैं बता दूं कि ये जो चैनल है, अगर आप अपना वॉइस और अपनी थॉट और विचार किसी भी टॉपिक पर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, किसी भी टॉपिक पर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, हमसे डिस्कस करिए, हम आपका डिस्कशन को शेड्यूल करेंगे, वेबिनार करेंगे, एक डिस्कशन फोरम पर लेके जाएंगे और हम आपके विचार को सुनेंगे। इसी के साथ